سول نے کہا کہ میں نے خطا کی ہے، اے میرے بیٹے داؤد لوٹ آ، کیونکہ میں تجھے انسان نہیں پہنچاؤں گا، اس لیے کہ میری جان آج کے دن تیری نگاہ میں قیمتی ٹھہری۔ دیکھ میں نے حمایت کی اور تمہاری بڑی بھول مجھ سے ہوئی۔ خدا کے کلام کی تلاوت پر، بائبل مقدس کے اس عظیم حصے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ تشریف رکھیں۔ I have played the fool۔ میں نے بڑی حماقت کی ہے، مجھ سے بڑی بھول چوک ہوئی ہے۔ یہ آج کا ہمارا مرکزی مضمون ہے، لیکن کیا میں اور آپ اپنے اس مضمون میں اترتے ہوئے اپنے دل کھول کر خداوند کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، زندگی میں بار بار مجھ سے حماقتیں ہوتی رہی ہیں، میں بار بھول چوک کے عمل سے گزرتا رہا ہوں۔ اس پیغام کے آغاز میں یاد رکھیے گا، لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی، اور جو اپنی خطاؤں اور اپنی بھول چوک کو نہیں مانتا، آپ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو بڑا اچھا ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی حماقتوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنی گستاخیوں کا اور اپنی بھول چوک کا اقرار ہمیشہ رب خداوند کے سامنے کرتے رہیں۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور پھر ہم خدا کے کلام کے اس حصے میں آگے بڑھیں گے۔ پیارے بچوں، یاد تو کریں کہ آخری بار کب آپ نے اپنی حماقت کا اور اپنی کسی بھول چوک کا خداوند کے سامنے اقرار کیا تھا؟ آخری بار کب آپ نے اپنی کسی حماقت کا، یہ بائبل کا لفظ ہے، کب میں نے اور آپ نے اپنی کسی بھول چوک کا خداوند کے حضور اقرار کیا تھا؟ آخری بار کب ہم نے ایسا کیا تھا؟ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں اور پھر اپنے آپ کو جواب دیں۔ اب آئیے ذرا ساؤل کی بائیوگرافی پر چلیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ساؤل پر کچھ دیر کے لیے اپنی نظروں کو جمائیں، بائبل مقدس کی ایک بڑی زبردست آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو مہربانی سے ضرور خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ دیکھیں۔ کرنتھس کے مسیحیوں کے نام مقدس پالوس کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت سے، اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کریں، تاکہ کوئی بشر، لفظوں پر غور کریں، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے، تاکہ 8.8 ارب کی اس دنیا میں جو اس وقت موجود ہے، کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ اب آئیے ذرا ساؤل کی طرف چلیں، اور ممکن ہے کہ کچھ باتیں آپ کے لیے نئی ہوں اور آپ کے لیے دلچسپی کا بھی باعث ہوں۔ میں نے اکثر خدا کے خادموں کو جب ساؤل کی زندگی پر پیغامات
देते हुए सुना है, तो मैंने ये महसूस किया है कि वो साउल को बड़ा नेगेटिव तौर पर पेश करते हैं और फिर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अपने बाप के गधे ढूंढने वाला शख्स, असल में वो ये कह रहे होते हैं कि एक थर्ड क्लास किस्म का शख्स जो है, खुदा ने उसे उठाया और उसे कौम बनी इस्राएल का पहला बादशाह बना दिया। मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि खुदा के वो खादिम गलती पर हैं भाई। देखें, अपने बाप के गधे, अपने गुमशुदा जानवरों के पीछे जाना, ये तो कोई बुरी बात नहीं, बल्कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। इससे किसी भी शख्स की अपने खानदान के साथ वफादारी और अपने बाप के साथ फर्माबरदारी जाहिर होती है। मेरी दानिश में इससे तो किसी भी शख्स की आशर उसके खुदा के साथ और अपने घराने के साथ सिंसेरिटी जाहिर होती है। इससे ये जाहिर होता है कि वो अपने खानदान की कितनी पीड़ लेता है, कितना दर्द लेता है, और उसके लिए खानदान के न सिर्फ अफराद बल्कि जानवर तक भी उसके लिए बड़े अहम हैं। ये कोई नेगेटिव बात नहीं कि वो अपने बाप के गधे ढूंढने गया हुआ है और हम उसे नेगेटिव तौर पर पेश करें। आइए जरा मैं आपको दिखाऊं कि मेरे रब खुदावन का चुनाव कैसा है, और मैं साउल की जरा असल तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं ताकि इस किस्म की नेगेटिविटी जो है वो कम से कम आज क्लियर हो जाए। इसकी बायोग्राफी पर जरा कुछ देर के लिए गौर तो करेंगे। आइए मैं जरा आपको बाइबल मुकद्दस में ले चलूं। अगर आप शमूएल की पहली किताब के 9वें बाब से पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सी बातें उभर कर आपके सामने आएंगी। खुदा ने किसे कौम बनी इस्राएल के पहले बादशाह के तौर पर चुना? साउल को। कौम बनी इस्राएल के पहले बादशाह के तौर पर खुदा ने किसे चुना? साउल को। अब जरा गिनते चले जाएं। 9वें बाब की पहली आयत में दिखाया गया है कि ये जबरदस्त किस्म का सूरमा है। तो खुदा ने किसी ऐमी बंदे को नहीं बादशाह के तौर पर चुना, बल्कि एक सूरमा का इंतखाब किया। दूसरी बात, अगर आप 9वें बाब की पहली और दूसरी आयत को पढ़ें तो यहां लिखा है कि यह शख्स गुड लुकिंग भी है। सो इस ख्याल को कंडेम कर दें, आज से रद्द कर दें और अपने जहन से खुश कर निकाल दें कि यह कोई थर्ड क्लास किस्म का आदमी था। नहीं, गुड लुकिंग बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। न सिर्फ ये सूरमा था बल्कि ये गुड लुकिंग भी था। और तीसरी बात, टॉल शख्स था। 9वें बाब की दूसरी और तीसरी आयत में लिखा है कि कौम बनी इस्राएल में इस जैसा कदावर शख्स कोई नहीं था। खुदा का इंतखाब ऐमी नहीं होता भाई। शायद हमने अपनी ज़हनी इख्तरा से उसे इस तरह से बना दिया हुआ है और इस तरह से पोर्ट्रेट करके हम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, जबकि साउल की असल तस्वीर तो ये है, सूरमा है, गुड लुकिंग है, टॉल शख्स है और फिर स्ट्रॉन्ग किस्म की ट्रेडिशंस का हामिल है। आप 9वें बाब की तीसरी तथा छठी आयत को देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग किस्म की ट्रेडिशंस का वो हामिल शख्स है। 9वें बाब की 21वीं आयत में इसकी एक और खूबी है, ये बड़ा सिंपल सा फेथ रखने वाला शख्स है, बड़ा सादा ईमान का शख्स है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जितना आपका ईमान सादा होगा, याद रखिएगा, उतना ज्यादा मजबूत होगा। 9वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है कि साउल को, 9वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है कि साउल को, 9वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है कि साउल को, 9वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है कि साउल को, 9वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है कि साउल को, 9वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है कि साउल को, 9वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है कि साउल को, 9वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है कि साउल को, 9वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है कि साउल को, 9वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है कि साउल को, 9वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है कि साउल को, 9वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है कि साउल को, 9वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है कि साउल को, 9वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है कि साउल को,
आपका ईमान जितना सादा होगा, आपका ईमान उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। अच्छा, इस शख्स का स्टार्ट जो है वो बड़ा जबरदस्त था। इसकी शुरुआत बड़ी जबरदस्त थी। खुदा ने इस शख्स को बादशाह के तौर पर चुना और फिर तैनात किया, और इसने 40 वर्ष तक इसने कौम बनी इस्राएल पर सल्तनत की। 40 वर्ष तक 40 वर्ष तक खुदा इस पर मेहरबान रहा। लेकिन होता क्या है, मैंने हमेशा ये सिखाया कि इख्तियार और इक्तदार जो है ये बड़े बड़ों की मत मार देता है। रुपया, पैसा, सीट जो है ये बड़े बड़ों की मत मार देती है। और मैंने हमेशा इस ऑल्टर से ये कहा कि तरक्की और सरफराजी को बहुत कम लोग बच्चों होते हैं जो हजम कर पाते हैं। खातिर खुदा ने इसे उठाया, बादशाह के तौर पर तैनात किया, लेकिन आप देखें फिर इसने कितनी बड़ी बड़ी हमाकतें और बेवकूफियां की। एक बात और नोट कर लें, मैं इफ्तिखार हमेशा बेटा ये कहता हूं कि छोटा बंदा, मेरे जैसा छोटा बंदा हमेशा छोटी गलती करेगा। जितना बड़ा बंदा होगा वो उतनी बड़ी गलती करेगा, ये याद रखें। अच्छा, छोटी गलती जो है उसको नजरअंदाज भी कर दिया जाता है, लेकिन बड़ी गलतियां जो हैं उनको कोई नजरअंदाज नहीं करता। बड़ा बंदा है, बादशाह है, इसलिए जो हमाकतें इसने की हैं, जो भूल चूक इससे हुई है, बाइबल मुकद्दस में वो मेरी और आपकी तरबियत के लिए रख दी गई है। और मैंने हमेशा कहा कि इस अजीम किताब में खुदा के बड़े बड़े सूरमाओं की न सिर्फ तारीफ की गई है, बल्कि उनकी गलतियों की भी निशानदही की गई है। और इसके पीछे खुदा का मकसद यह है कि जब आइंदा नस्ल इस किताब को पढ़े तो कम से कम वो इन गलतियों से इज्तनाब करें, इन गलतियों से बच जाए। क्या किया इसने? अगर आप 15वें बाब में झंप करके चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसने अटैक किया, और किस तरह से अटैक करने के बाद इसने लोगों को कत्ल किया। कानून क्या था, खुदा का हुक्म क्या था कि जब तुम गैर अक़वाम पर अटैक करोगे तो तुम उनकी हर चीज को तबाह बर्बाद कर दोगे, उनकी कोई चीज तुम अपने पास नहीं रखोगे। इसने क्या किया? इसने इंसानों को तो मार दिया, लेकिन जानवरों को ये अपने साथ ले आया। और खुदा ने कहा कि ये जानवरों के हिनहिनाने की आवाजें कैसी हैं भाई? बाइबल में यही लिखा हुआ है, ये जानवरों के हिनहिनाने की आवाजें कैसी हैं। मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि जानवर भी साथ ही मार दिए जाएं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? साउल, तूने क्यों मेरे हुक्म को पास ओवर किया? क्यों तूने ऐसा किया? क्यों तूने मेरी हुक्म अधूरी की? तो फिर जब आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये कौम को लीड कर रहा है, लेकिन हमाकत के साथ और बेवकूफी के साथ अब इसमें जलन और सड़न का अमल जो है वो भी शुरू हो चुका है। और आप जानते हैं कि 18वें बाब में इसका वाज़ेह तौर पर बयान किया गया। जब बेटियां जो हैं, इस्राएल की बेटियां, जब वो गाती और बजाती हैं और वो दाऊद की तारीफ करती हैं, तारीफ इसकी भी हो रही है, लेकिन चूंकि उसकी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, इसलिए ये शख्स जलन और
उड़न का शिकार हो जाता है और फिर आप जानते हैं कि ये दाऊद को मारने का मंसूबा बनाता है। अगर आप 22वें बाब में झंक कर जाएं तो आप देखेंगे कि वहां ये काहिनों तक का खून करवा देता है। इसने अपने दौर में जो काहिन थे, जो रास्ता दिखाने वाले थे, उनको भी रास्ते से हटा दिया ताकि कोई अच्छी बात जो है, कोई नेक बात जो है, कोई नेक सलाह जो है वो इसके कानों तक न पहुंचे। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि जब हम पूरे तौर पर गुनाह में धंसे होते हैं तो फिर हमारी आंखें भी बंद हो जाती हैं, हमारे कान भी बंद हो जाते हैं, हम देखते हुए नहीं देखते और हम सुनते हुए नहीं सुनते। हम समझते हैं कि किसी ने कुछ नहीं देखा और कोई कुछ नहीं कह रहा, हालांकि लोगों की आवाजें जो हैं वो हमारे कानों में पड़ रही होती। इसने अपने आप को खुदा की ताबेदारी से हटा दिया, नादानी पर नादानी की, और आप जानते हैं कि इस नादानी के हवाले से इसने बदनी तौर पर बड़ी तकलीफ भी उठाई। एक बुरी रूह जो है, आप जानते हैं कि इसे कितना ज्यादा दर्द और कितनी ज्यादा पीड़ देती रही। एक बात याद रखिएगा, जब हम जिंदा खुदा से अपने आप को फेर लेते हैं तो फिर हम इस किस्म की गंदी अरवा के कब्जे में चले जाते हैं और फिर वो गंदी अरवा जो हैं, बुरी अरवा जो हैं, वो जिस तरह से चाहती हैं हमें दुख देती हैं। इसलिए अगर मैं और आप किसी भी तरह की ऐसी तकलीफ से बचना चाहते हैं तो फिर बड़ा जरूरी है कि हम खुदावंद के हाथ को थामे रहें और उसके हाथ को कभी ना छोड़ें। अंजाम क्या हुआ इसका? बड़ा ही दर्दनाक भाई, बड़ा ही दर्दनाक अंजाम। एक ही दिन में, एक ही वक्त में इसने तो सुसाइड किया। आपको पता है ना, इसने सुसाइड किया भाई, अपनी तलवार पर ये खुद गिरा और आप जानते हैं कि मर गया। इसने सुसाइड किया और एक ही दिन में इसके बेटे भी मार दिए गए। और लिखा है कि इस्राएल में कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। अगर मैं और आप खुदावंद के साथ ठीक ठीक चलते हैं, अपने माजी को याद रखते हैं और ये याद रखते हैं कि उसने कहां से हमें उठाया और कहां बिठा दिया है, तो फिर खुदा हमें मजीद सरफराज करता करता और करता चला जाता है। लेकिन जब हम भूल जाते हैं, जब हम सीट के नशे में, इक़्तिदार के नशे में, रुपए पैसे के नशे में अपने रब खुदावंद को भूल जाते हैं, तो फिर खुदावंद वो सब कुछ मुझसे और आपसे ले लेता है जो उसने अपने फजल में मुझे और आपको दिया होता है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने हैं जिन्होंने कल जबल अली सेंटर पर दिए गए पैगाम को सुना है। मैंने वहां खुदा के बेटों और बेटियों से गुजारिश की है, आप इबादत ना छोड़ें। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपका रब खुदावंद होना चाहिए। वहां भी मैंने कहा था, यहां भी कहता हूं, रिश्तेदारियां गई भाड़ में, दुनिया के काम काज गए भाड़ में। हमें जनूनी होना है अपने रब खुदावंद के लिए। इब्लीस तो इस किस्म की हरकतें करता रहेगा। अगला पैगाम खुदा करे तो हम इस पर सुनेंगे, आपको बरकत मिलेगी। वो तो आपको रोकता रहेगा, अच्छा आप खुद ही चले जाएं, अपनी बीवी को छोड़ जाएं, फिर वो आपके साथ डील करने की कोशिश करेगा। अच्छा आप
ٹھیک ہے زیادہ دور نہیں جانا، جبلن نہیں جانا، اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ کو وہ یہ بھی کہے گا اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ اپنے خود بھی چلے جائیں، آپ اپنی بیوی کو بھی لے جائیں، لیکن اپنے بچوں کو تو چھوڑ دیں نا۔ پھر وہ آپ سے یہ بھی کہے گا کہ اچھا آپ اپنے بچوں کو بھی لے جائیں، بڈھوں کو بھی لے جائیں، سب کو لے جائیں، کیونکہ موسیٰ اکڑ گیا، اس نے کہا کہ سب جائیں گے، میں کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا اچھا چلے ایسا کریں جانور تو چھوڑ جائیں۔ یہ ابلیس کی چال ہے بھائی، اس کو سمجھیں۔ میرا اور آپ کا رب خداوند میری اور آپ کی فرسٹ پرائیورٹی پر ہونا چاہیے۔ اور کل کی عبادت میں نے یہ سکھایا تھا ملٹری رول کیا ہے۔ آپ نے کتنا بھی اچھا کیوں نہیں کرنا، لیکن آپ نے اچھا کرنے سے پہلے بھی اپنے کمانڈنگ آفیسر سے اجازت لینی ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر جی یہ چونکہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا، یہ اچھا کام تھا، دیکھیں میں نے کوئی برا کام تو نہیں کیا، اس لیے مجھے اچھا لگا میں نے کیا۔ آپ کو پٹھو لگ جائے گا۔ ملٹری رول یہ ہے کہ آپ نے کوئی اچھا کام بھی کرنا ہے تو اپنے کمانڈنگ آفیسر سے پوچھنا ہے۔ اگر آپ نے سنڈے کی عبادت چھوڑنی ہے تو آپ نے اپنے کمانڈنگ آفیسر سے پوچھنا ہے، اسے کوئی ایک گڈ ریزن دینی ہے کہ آپ اس عبادت کو کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ عبادتوں کو ہلکا نہ لیں بھائی، اور نہ خدا کو ہلکا لیں۔ جب ہم خداوند اپنے خدا کے حوالے سے جنونی ہوتے ہیں اور فرسٹ پرائیورٹی اسے دیتے ہیں تو پھر بات بنتی ہے، پھر بات بنتی ہے۔ اور بائبل کا خدا آپ یقین مانیں بھائی ساتھیوں، یہ جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں ان عبادتوں سے خدا خوش ہے، لیکن رومیوں کے خط میں لکھا ہے خدا کے نزدیک پسندیدہ عبادت اصل میں وہ ہے جب میں اور آپ یہاں اپنے آپ کو زندہ قربانی کے طور پر خدا ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسی ذرا جا ٹائم دے کے کہنے میں کو پیسہ ٹائم دی قربانی جو دیتی ہے، روپے پیسے دی قربانی بھی دیتی ہے، گڈی دی بھی دیتی ہے، پیٹرول دی بھی دیتی ہے، آسان کی تاجی۔ زبور نویس کیا کہتا ہے کہ میں تیرے احسانات کو کیسے بھولوں، اور ان احسانات کے افزانے میں اے خدا میں تجھے کیا دوں، کیا دوں میں تجھے۔ اگر یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، اپنے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہیں، لیکن اگر اس عبادت کے بعد، میں نے کل کی عبادت میں بھی کہا، ہم خدا کے ساتھ ریلیشن میں ایک لیول اوپر نہیں جاتے، یہاں سے بھرے ہوئے واپس نہیں جاتے، تو پھر ان عبادتوں کا کوئی تک نہیں بنتا۔ ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک ہم زندہ قربانی کے طور پر یہاں اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے، تب تک ہماری عبادت معقول بھی نہیں ہوتی، بائبل میں یہی لفظ ہے، اور خدا کو پسندیدہ بھی نہیں ہوتی۔ ساؤل کیوں ناپسندیدہ بن گیا؟ اس لیے کہ اس نے خدا سے اپنے آپ کو پھیر لیا۔ اچھا یہی داؤد نے بھی کیا، اور یہی سلیمان نے بھی کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان تینوں بادشاہوں کا انجام کیا ہوا۔ سو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خدا کی عبادت کے حوالے سے سنجیدہ ہو جائیں۔ بھول چوک ہو جاتی ہے، حماقتیں ہم کرتے رہے ہیں، ہو جاتی ہیں، ہمیں ان کا برملا اقرار کرنا ہے، لیکن ہمیں غلطی پر غلطی نہیں کرنی، غلطی پر غلطی نہیں کرنی۔ پھر سے آپ کو یاد دلاتا ہوں، لکھا ہے اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو۔ ارے کہاں سے تم نے اٹھایا، کہاں پہنچا دیا؟ پاکستان کے کسی چھوٹے سے گاؤں سے، کسی چھوٹی سی بستی سے، سلم ایریا سے میں نے تمہیں اٹھایا، ارے کہاں انٹرنیشنل سٹی میں رکھ دیا۔ اپنے بلائے جانے پر تو ذرا نگاہ کرو۔
मेरी मेहरबानियों पर तो जरा निगाह करो। मैंने ये सारी की सारी सहूलतें किसी और को नहीं दी, तुम्हें दी, लेकिन तुम मेरे साथ कितने सिंसियर, कितने सिंसियर। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और अपने आप से जवाब लेने की कोशिश करें कि हम अपने रब खुदावंद के साथ कितने सिंसियर हैं, कितनी सिंसेरिटी के साथ हम अपने रब खुदावंद के साथ चल रहे हैं। अपनी भूल चूक का इकरार करें, अपनी हमाकतों, नादानियों, गलतियों को मानें और एक नई रूह को लेकर, एक नए अज़्म को लेकर, एक नई सोच को लेकर, एक नए वल्वले को लेकर खुदावंद के घर से निकले, उसके साथ रिलेशन में एक लेवल और ऊपर चले जाएं, प्यार में एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ जाएं, रफाकत में एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ जाएं, क्योंकि बाइबल का खुदा यही चाहता है। मेरे खुदावंद तेरे कलाम के तराजू में जब जब हमने अपने आप को तोला है, कम पाया है, हमारे सर खुदावंद नदामत से झुके हुए, हम शर्मिंदा हैं, तेरे हजूर अपनी भूल चूक का, अपनी खताओं गलतियों का इकरार करते और तुझसे मुआफी मांगते। रहम कर, तरस खा और बख्श दे खुदावंद के हम बाइबल मुकद्दस के इन बड़े सूरमाओं के अंजाम को सामने रखते हुए बचे, ठीक तौर पर तेरे साथ चलते रहें, ताकि रूहानी और जिस्मानी लज्जतों को, बरकतों को हासिल करते रहें। सलामती के साथ हमें रुखसत कर और आने वाले उस बड़े हफ्ते के लिए खुदावंद हमें पूरे तौर पर तैयार कर। इस पूरे हफ्ते के दौरान खुदावंद तेरा हाथ हम में से एक एक पर रहे, हमारी रक्षा कर, हमें इस गंदे वायरस से बचा और पूरे तौर पर खुदावंद महफूज रख, अपने बेटे यीशु के नाम में, आमीन।